اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ترتیب سے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور یہ محرم کا مہینہ، اور ایک رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے۔ فرمایا کہ 12 میں سے 4 احترام والے ہیں، محترم ہیں۔ ان کا احترام کب سے ہے؟ یہ محترم کب سے بنے؟ یہ تقدس والے کب سے بنے؟ ان کا احترام کب سے کیا جانے لگا؟ ان کو محترم کب سے سمجھا جانے لگا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ محترم تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، آمد سے، نبوت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے جب ان مہینوں کو بنایا تو بعد میں یہ 4 ان میں سے محترم کر دیے۔ محترم کا معنی کیا ہوتا تھا؟ تقدس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ احترام کا معنی کیا ہوتا تھا؟ کیوں ان کو احترام والا بنایا گیا؟ فرمایا کہ کفار اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرتے تھے، جھگڑتے تھے، خونریزی کرتے تھے، تو کہا کہ ان 4 مہینوں میں نہیں لڑنا آپس میں، یہ محترم ہے، ان کا احترام کرو، رک جاؤ، لڑائیاں چھوڑ دو۔ اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جب تم کفار سے لڑو، لڑائی چل رہی ہو تو ان مہینوں میں رک جایا کرو، اپنا جہاد روک دیا کرو، رک جایا کرو، یہ محترم مہینے ہیں۔ ہاں اگر کفار حملہ کر دے تو پھر نہیں رکنا، پھر جوابی حملہ کرنا ہے، پھر دفاعی پوزیشن میں آنا ہے۔ تو محرم کا مہینہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا احترام نبی علیہ السلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ محترم نبی کی آمد کے بعد نہیں ہوا، نبی کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے کا اس کا احترام تھا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید یہ مہینہ محترم اس لیے بن گیا کہ اس مہینے کے اندر نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، شاید اس وجہ سے محترم بنا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں آیت نمبر 36 سورۃ توبہ سے، تو قرآن کہتا ہے نہیں، یہ محترم حضرت حسین کی شہادت نہیں، پیدائش نہیں، نبی کی آمد، نبوت نہیں، نبوت سے بھی کئی سال پہلے کا اس کا احترام تھا۔ یہ شہادت کی وجہ سے احترام نہیں۔ ہاں ان کی شہادت اس مہینے میں ہونا یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ ان کے لیے چنا، ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا کہ جس مہینے میں اللہ نے احترام رکھا ہے، محترم رکھا ہے، جس کو مقدس بنایا اللہ نے، اس میں ان کو شہادت والی عظمت دی۔ انہوں نے اس دروازے سے آنا ہے، لمبا ہو جائے گا، تھوڑا سا کھول دیں، ایک بندہ جائے بس، باقی میری طرف توجہ فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے
दूसरी आयत मैंने पढ़ी सूरत आले इमरान की आयत नंबर 169, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। और अगर हम इससे पहले देखें सूरत बकरा में, वहां अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है। लेकिन फिर सवाल होता है वो कैसे जिंदा है? उनको तो हमने कफना दिया, दफना दिया, उनका जनाजा पढ़ लिया, फिर भी जिंदा है, क्या मतलब, कैसी जिंदगी है? अल्लाह ने फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें शऊर नहीं है। वो कैसी जिंदगी है वो मुझे पता है, तुम्हें उसका इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। बस तुम ये अकीदा रखो कि वो जिंदा है, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है। इसी को अल्लाह ने आयत नंबर 169 में फरमाया सूरत आले इमरान में, वहां कहा था वला तक़ूलू, न कहो मुर्दा, हुक्म दिया मुर्दा नहीं कहना। यहां कहा कहना नहीं, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाते हैं ना, कहना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं, ख्याल भी नहीं करना, दिल में तुम्हारे ये बात आए भी ना कि ये मुर्दा है। वला तहसब, गुमान नहीं करना, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, न गुमान करो उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा गुमान न करो। तो फिर क्या कहें? कहा बल अहयाउन, वो जिंदा है। कहां जिंदा है? इस कब्र में जिंदा है। कहां पर जिंदा है? फरमाया ना, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के यहाँ जिंदा है। फिर खाना पीना, फरमाया युरज़क़ून, इस रब के पास वो जिंदा है, वो उन्हें रिज़्क़ भी देता है। बात क्लियर हो गई कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाते हैं उन्हें मुर्दा नहीं कहना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो उसके रास्ते में शहीद किए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, उनकी अज़मत को बयान किया कि वो मामूली लोग नहीं है जिन्हें तुम मुर्दा समझ रहे हो, जिन्हें तुमने जनाजा पढ़कर छोड़ दिया, ये मामूली लोग नहीं है, इन्हें मुर्दा ना कहो। किसी और के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा इस तरह, इतनी वजाहत नहीं कि दो मकाम पर कहा, कहना भी नहीं, समझना भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जो आदमी शहीद हो जाता है वो बड़ी अजमत वाला है। इसका मतलब शहादत बड़ी अजमत की चीज है, अजीमत की चीज है, शान और मर्तबे वाली चीज है। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ शहादत को मुसीबत समझा जाता है, शहादत को गम समझा जाता है, शहादत के महीने को नहुसत वाला महीना समझा जाता है। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया कि भाई ये अजमत वाली बात है, ये नहुसत वाली बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, मुसीबत वाली बात नहीं है, गम वाली बात नहीं है, ये शान और मर्तबे वाली बात है, ये किस्मत वालों को मिलती है, शहादत हर एक को नहीं मिलती। ये अल्लाह के मुंतखब बरगुज़ीदा जिनकी किस्मत पे अल्लाह ने रखा हो उसी को मिलती है। और फिर शहादत का शौक सहाबाए किराम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शुहदा के बारे में कि जब सब लोग जन्नत में चले जाएंगे, शहीद भी जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला शुहदा की जो अरवाह हैं, रूहें हैं, उनसे पूछेंगे, उन्हें बुलाएंगे, भाई किसी चीज की जरूरत है? सब कुछ देने के बाद, सारी नेमतें, सारे बागात, सारे महल्लात, सारा कुछ देने के बाद अल्लाह ताला पूछेंगे भाई किसी और चीज की जरूरत हो? कहेंगे या अल्लाह अब क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया,
अल्लाह ताला फिर पूछेंगे। जब 3 दफा पूछेंगे तो फिर वो जवाब देंगे कि या अल्लाह, अगर देना है, अता करना है, तो फिर हमारी ये ख्वाहिश और तमन्ना है। हाँ बोलो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शुहदा की अरवाह है वो अल्लाह से कहेंगी, दरखास्त करेंगी, जब आपने अता ही करना है, देना ही देना है, इसके बगैर गुजारा नहीं, तो फिर हमें एक दफा वापिस जिंदा कर दे, दुनिया में बेच दे। हमें भेजने के बाद फिर एक दफा अपने रास्ते में शहीद करवा दे, इसलिए कि जो मजा हमें शहादत में आया वो हमें कहीं नहीं आया। हम तेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाए, फिर जिंदा हो, फिर शहीद कर दिए जाए, फिर जिंदा हो जाए, अगर देना ही है तो फिर ये दे दे। अल्लाह फरमाता है ये मेरा कानून नहीं, मेरा कानून यही कि जो एक दफा यहाँ आ गया फिर वो वापस क़यामत से पहले जाने वाला नहीं। ये शहादत इतनी अजमत की बात है कि शुहदा शहादत के बाद फिर शहादत ही मांगेंगे। सब कुछ मिल गया ना, महल्लात मिल गए, बागात मिल गए, सारा कुछ वहां मिल गया, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, शहादत की तमन्ना। जो मजा और लुत्फ शहादत में आया वो कहीं नहीं आया। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, सारे नबियों के सरदार हैं, इमाम हैं। ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के नबी भी शहादत मांग रहे हैं। भाई नबी से बढ़कर दर्जा और मकाम किसका हो सकता है? फिर नबियों का इमाम, फिर खातमुन नबिय्यीन, सब कुछ है। अल्लाह के बाद दर्जा ही उनका है, मकाम ही उनका है, मर्तबा ही उनका है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ मिलने के बावजूद भी अल्लाह से यही दुआ करें कि या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा हो जाऊं, फिर शहीद किया। इमामुल अंबिया भी शहादत मांग रहे हैं। इसका मतलब ये अजमत की बात है, तभी तो मांग रहे हैं। नहुसत होती, मुसीबत और गम होती तो नबी कभी ना मांगता। नबी कभी ना कहता कि मैं शहीद होना चाहता हूं, जिंदा होना चाहता हूं, फिर शहीद होना चाहता हूं। खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, खुलफाए राशिदीन है, आशरा मुबशरा है, नबी से जन्नत की बशारतें हैं, जमानतें हैं। इतनी कमाल किस्म की खिलाफत है जिसमें अमानत है, दियानत है, जिसकी मिसाल कोई नहीं। खलीफा सानी है, लासानी है, खलीफा सानी है, लासानी है, इसका कोई सानी नहीं है, ऐसा खलीफा गुजरे। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीली, अल्लाह मुझे देनी है तो फिर शहादत दे अपने रास्ते में। इसका मतलब अजमत की बात है, लेकिन गम की बात नहीं, मुसीबत की बात नहीं, मगर ना कभी भी हजरत उमर ना मांगे। मैदान उहुद है, मैदान उहुद, 2 सहाबी हैं, एक अब्दुल्ला इब्न जहश है और एक हजरत साद बिन अबी वकास है। दोनों सहाबी हैं। सुबह जंग है, कुफार से लड़ना है और दुआएं कर रहे हैं। दुआ का अंदाज देखें। एक सहाबी कहता है कि मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन कहना है। दूसरा कहता है कि जब मैं दुआ करूं फिर आपने आमीन कहना। मांगा क्या जा रहा है? पहला सहाबी अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह कल जब मुकाबला हो तो मेरा मुकाबला तेरे नबी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना उससे हो, मैं उससे मुकाबला करूं, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं। मुहाजिर साहबी कहता है आमीन। फिर दूसरे साहबी की बारी आती है, वो दुआ करता है कि अल्लाह मेरी लड़ाई और मेरी जंग भी जो तेरे नबी का दुश्मन है ना उसी से हो, और फिर जब लड़ाई हो तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरी आंखें निकाल दे, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दे,
और पहाड़ी के ऊपर मेरे टुकड़ों को डाल दिया जाए। दूसरा साहबी कहता है आमीन। अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का शौक देखें कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम अल्लाह के नबी के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। इसी तरह जंग यमामा है, खत्म नबूवत के मुनकिरों के साथ जंग हो रही है। ये वो जंग है जिसमें 1200 कारी कुरान शहीद हुए। 1200 कारी कुरान, कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लड़ाई में अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को भी भेजा और अपने भाई को भी भेजा कि खत्म नबूवत की लड़ाई है, तुम भी जाओ और लड़ो कुफार के साथ। दोनों लड़ते हैं, चचा शहीद हो जाता है, यानी हजरत उमर का भाई शहीद हो जाता है और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की किस्मत में शहादत नहीं होती, बेटे की किस्मत में शहादत नहीं होती, वापस आते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से होते हैं कि तू पीछे क्यों रह गया, तुझे शहादत क्यों नहीं मिली, तो अल्लाह के रास्ते में शहीद क्यों नहीं हुआ, इतना सुस्त बंदा है, तू चुप गया होगा कहीं। बड़े गुस्से हुए, तू भी अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के लिए अपनी जान दे देता तो मैं अल्लाह की अदालत में फख्र करता। अल्लाह ताला मुझसे पूछते क्या लेकर आए हो, तो मैं कहता कि मैं अपने भाई की शहादत लेकर आया हूं, अपने बेटे की शहादत लेकर आया हूं, तू पीछे क्यों रह गया। अब्दुल्ला इब्न उमर रोने लगे और अर्ज करने लगे, अब्बा जान, हम दोनों ने दुआ मांगी थी शहादत की, चचा ने भी मांगी थी, मैंने भी मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और मैं रह गया। यह है शौक शहादत। अल्लाह के रास्ते में शहीद होना बुरी बात नहीं है, मुसीबत की बात नहीं है, गम की बात नहीं है। फिर देखें शौक शहादत हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु है, शादी हुई है, पहली रात है, जब कुफार ने मुसलमानों पर जंग उहद का मैदान है यलगार की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा मदीना मुनव्वरा, जाओ जाकर ऐलान करो जो रह गया वो आ जाए वापस, जो जिस काम में लगा हुआ है, मसरूफ है, वो अपने सारे काम छोड़ दे वहीं और जिहाद में शरीक हो जाए। पैगाम लेकर बंदा आया, उसने ऐलान किया। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु की पहली रात है, जैसे ये ऐलान सुना, तहज्जुद का वक्त है, फौरन उठे, बल्कि गुस्ल के लिए कहते गए हुए थे, गुस्ल खाने में थे कि गुस्ल करो, हालत जनाबत है, लेकिन गुस्ल खाने में थे, ये आवाज कानों में पड़ी कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है, कुफार से लड़ने के लिए जाना है। शौक शहादत देखें, कुफार से लड़ना है। जब ये आवाज कान में पड़ी, गुस्ल भी नहीं किया, कपड़े उतारे हुए, तन बदन से कपड़े रखे हुए, जैसे अल्लाह के नबी का ये पैगाम कानों में पहुंचा कि अल्लाह के नबी बुला रहा है, कुफार से जंग है, लड़ाई है। शौक शहादत इतना था, अल्लाह के नबी के हुक्म के इतने फर्माबरदार थे, मानने वाले थे, वहीं पर सारा कुछ छोड़ दिया, अपना गुस्ल छोड़ दिया, कपड़े पहने और निकल पड़े और लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, शहीद हो गए। बाद रिवायत में आता है कि कुछ वक्त के लिए उनकी लाश मिली नहीं, जब लाशें इकट्ठी कर रहे थे ना, तो कुछ वक्त के लिए लाश मिली नहीं, नजर नहीं आई, लेकिन बाद में जब लाश नजर आई तो देखा कि उनके सर से, पेशानी से ना पानी टपक रहा। सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी ये क्या बात है, इसको तो किसी ने गुस्ल नहीं दिया और शहीद को तो वैसे ही गुस्ल नहीं दिया जाता,
یہ پانی ٹپک رہا ہے، لگتا ہے اس کو کسی نے غسل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے، جاؤ جا کر پوچھو اس کے گھر میں کیا بات تھی۔ تو جب گھر میں جا کر پوچھا بیوی سے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسی حالت میں تھے جب اللہ کے نبی کا پیغام آیا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، تو انہوں نے اپنا غسل چھوڑ دیا اور جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے، تو فرشتوں نے ان کو کیا دیا؟ غسل دیا۔ تو شہادت یہ عظمت اور شان کی بات ہے، یہ مصیبت اور غم کی بات نہیں۔ اور پھر یہی جنگ احد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم سنتے بھی ہیں، لوگ جھوٹی جھوٹی روایات ہمیں سناتے بھی ہیں، ہم روتے بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کا نقشہ پیش کیا جائے گا اور پھر نواسہ رسول ہوگا تو غم تو ہوگا، پریشان تو ہوں گے، روئیں گے بھی صحیح، لیکن دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ جنگ احد کے اندر جب ان کو شہید کیا گیا، بعض روایات میں ہے 12 ٹکڑے اور بعض میں ہے 17 ٹکڑے۔ آنکھیں ان کی نکال دی گئی، زبان ان کی نکال دی گئی، ہاتھ پاؤں ان کے کاٹ دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاش دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت صفیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے اور ان کی بہن ہے حضرت حمزہ کی، وہ آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو روکو، ان کو غم برداشت نہیں ہوگا ان سے بھائی کا، جو حال کر دیا ہے، مسلح کر دیا تھا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اس لاش کی پہچان نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوروں کے ذریعے ان کی لاش کی پہچان کی کہ یہ چچا کی لاش ہے، اور بھی لاشیں پڑی ہوئی تھی، پوروں کے ذریعے پتا چلا کہ یہ چچا ہے، یہ میرے چچا ہے۔ نہیں آنے دیا گیا، لیکن جب آئے تو دیکھا جس طرح بوری کے اندر لاش کے ٹکڑے جمع کیے جاتے اس طرح جمع کر کے دیکھا اور روئیں، اور یہی کہا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر سکھایا، میں صبر کروں گی، اگر رونا جائز ہوتا تو میں اپنے آنسوؤں سے تجھے غسل دیتی، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں صبر سکھایا۔ اس سے بڑھ کے یہ شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، لیکن مسلمان کو نہیں پتا، مسلمان کو ایک ہی مہینے کا پتا ہے۔ کتنی بڑی شہادت ہے کہ نبی کا سگا چچا ہے، حضرت حمزہ ہے، 17 ٹکڑے ہوئے ہیں، نبی بھی جس پر برداشت نہ کر سکے، اور نبی نے کہہ دیا تھا کہ میں کفار کے اتنے بندوں کے ساتھ یہی کروں گا، میرا ایک چچا شہید ہوا ہے نا، میں ان کے کئی بندوں کے ساتھ یہی کام کروں گا، اسی طرح ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نا، ایسا نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لینا ہے، زیادہ نہیں کرنا۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے، انسان کو شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن ٹکڑے کر دیے، مسلح کر دیا، اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی شہادت پر ہمیں صبر سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، صحابہ اکرام کو مارنا پیٹنا نہیں سکھایا۔ اگر یہ مارنا اور پیٹنا اور غم کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غم کرتے اور اپنے خود بھی کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو بھی کہتے کہ تم بھی بیان کرو، غم کرو، اپنے رخسار کو مارو، اپنے گریبان چاک کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا، بیان کرنے سے، اپنے گریبان کو چاک کرنے سے
और अपने रुखसारों को मारने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, ये काम नहीं करना। फर्ज ये कर रहा था, शहादत अजमत की बात है, गम की बात नहीं है। और हम गम मना रहे हैं शहादत का 1400 साल से। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई 1400 साल पहले, अभी तक हम गम मना रहे हैं। और गम और शोक 3 दिन से बढ़कर जायज नहीं। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, कुरान के अंदर 3 दिन से ज्यादा गम से मुराद यह है शोक। शोक जायज नहीं है। और शोक वो नहीं जो जिस तरह हम मनाते हैं, वो मतलब नहीं है शोक का। मुहर्रम का महीना, मैंने शुरू में अर्ज किया, ये गम का महीना नहीं है। अहले सुन्नत से बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत को समझाना चाह रहा हूं, सुन्नियों को समझाना चाह रहा हूं। दूसरे लोगों से तो मेरी बात है ही नहीं, न मैंने करनी है। मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, अपने लोगों को समझाना चाह रहा हूं, बार बार समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह करे कि उनको समझ आ जाए कि ये चीजें जो हम करते हैं ये कुरान में नहीं है, ये नबी की तालीमात में नहीं है, ये सहाबा की तालीमात में, अहले बैत की तालीमात में ये चीजें नहीं है जो हम कर रहे हैं या हमारे बड़े करते चले आ रहे हैं। एक मसला हमारा ये भी होता है, एक परेशानी हमारे लिए ये भी बनती है, हम सब के लिए बनती है, जब कोई बात सही समझ आ जाए कुरान की, नबी के फरमान की, तो फिर हमारा मसला ये बनता है कि हमारे बड़े करते थे, अब अगर न करें तो नाराज होंगे, रिश्तेदार नाराज होंगे। इसका मतलब यह कि आपको कुरान से, नबी से रिश्तेदार ज्यादा अजीज है। कल को अल्लाह को भी यही जवाब दोगे, अल्लाह ताला पूछेंगे, अल्लाह के नबी पूछेंगे ये बिदआत क्यों करते थे, ये गुमराही के काम क्यों करते थे, तो आप यही कहेंगे या अल्लाह इसलिए करते थे कि हमारे रिश्तेदार कभी नाराज ना हो जाए, उनको राजी करने के लिए हम ये कुछ करते थे। आखिरी बातें कर रहा हूं। 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 9 और 10 मुहर्रम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है और हम क्या करते हैं। 9 और 10 मुहर्रम को सबील लगाना, अब सबील पे कोई भी चीज लगाते हैं आप, सारी चीजें इसमें शामिल है। खाना बनाना, खाना खिलाना, और जितने भी काम हैं, हत्ता कि मैंने ये भी देखा है, आप भी देखते हैं कि 10 को कब्रिस्तान जाना हमारे यहां लाजिम है। नमाज पढ़े ना पढ़े, कुरान पढ़े ना पढ़े, भाई 10 को कब्रिस्तान जाना, जाकर कब्र से मिट्टी पानी है। क्यों भाई? कुरान मेरे सामने पड़ा हुआ है, कौन सी आयत में, नबी के कौन से फरमान में, सहाबा को कौन सा, कहां पर यह अमल है, अहले बैत का कहां पर यह अमल है। ये 10 को लाजिम पकड़ लिया आपने, हमें भी समझाए यार, हमें भी बताए। कहीं 10 का जिक्र नहीं है, कहीं 9 का मुहर्रम का जिक्र कि कब्र पर जाकर मट्टी 10 मुहर्रम को सीधी करनी है तो सवाब ज्यादा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कब्र को ठीक भी करना, मट्टी नहीं डालना, लेकिन 10 को डालना ये कहीं नहीं है, 9 को डालना ये कहीं नहीं है। हमारे यहां देखा ना आपने, हम लाजिम पकड़ते हैं जैसे पता नहीं ये फर्ज और वाजिब काम है, ना गए तो पता नहीं कितने गुनाहगार हो जाएंगे, हमारे मरहूमीन हमसे नाराज हो जाएंगे। याद रखें, 9 और 10 के साथ ये मट्टी डालना कोई खास नहीं, ये हमने खास बनाया, इस रस्म को तोड़े। अगर आप सुन्नी हैं तो, अगर आप सुन्नी हैं और यकीनन है, आप अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं तो भाई सही सुन्नी बनो, फिर आधा तीतर आधा बटेर ना हो ना।
बनना है तो फिर सही सुन्नी बनो, सारी बातें मानो। क्यों किसी को कॉपी करते हो, क्यों किसी को देखा देखी? जब बात समझ आ गई है, जब मैंने अर्ज कर दी है, गुजारिश कर दी है कि यार ये चीजें हम में नहीं है भाई, ये हमारे यहां नहीं है, ये हमारे यहां डाली गई है, इसको अपने आप से निकालो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सबील लगाना इस दिन हजरत हुसैन के नाम की, खाना खिलाना, कुरान की बात बता रहा हूं। कुरान कहता है कि ये सबीलें लगाना गैरुल्लाह के नाम की और खाने खिलाना गैरुल्लाह के नाम पर, ये सब हराम है। अब मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी। मैंने मसला बताना है, मैंने कुरान से मसला बताना है, नबी के फरमान की बात करती है, अहले बैत की बात करती है, सहाबा का अमल बताना है। अमल करना न करना ये आपकी मर्जी। गैरुल्लाह के नाम की सबील लगाएं, गैरुल्लाह के नाम का खाना बांटे, गैरुल्लाह के नाम की कोई मीठी चीज बांटे या कोई नमकीन चीज बांटे, कुछ भी बांटे, गैरुल्लाह की नजर और नियाज क्या है? हराम। इसलिए कि नजर और नियाज ये हक है सिर्फ किसका? बोले भाई, किसका हक है? अल्लाह का हक है। नजर और नियाज हजरत हुसैन का हक, क्योंकि नजर और नियाज ये इबादत है। किसी की नजर देना, नियाज देना ये इबादत है, और गैरुल्लाह की इबादत हराम है। गैरुल्लाह की इबादत क्या है जी? हराम है। ये बात समझ ले अच्छी तरह। फिर ना कहना कि दसिया नहीं यार, सानू पता नहीं सी, 4-5-6 दिन पहले दस रहा था, दिन आने से पहले बता रहा हूं, ठीक है ना? फिर आप कहें जी हमें पता नहीं था, इसलिए पहले बता रहा हूं। मैं बता के बड़ी जिम्मा हो रहा हूं कि कहीं कल आपको ये ना कहे कि हमने आपने बताया क्यों नहीं, हमने सबील लगा ली, हमने खाना पका लिया। कोई इस तरह की बात नहीं है। पिछले जुम्मे भी अर्ज किया था, ये जो 10 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को हम करते हैं, अगर ये सारे काम जायज होते तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नवासे रसूल हैं, जिनके घर शहादत हुई है, सबसे पहले उनको करना चाहिए था ना यार, कि नहीं? उनका हक पहले था कि हमारा हक पहले है? हजरत हुसैन के बेटे का हक पहले है कि असी पहले मामे बने हुए हैं? भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं कर रहा, वो उनका बेटा है, सगा बेटा है। उनका बेटा आगे इमाम जाफर सादिक है, इमाम मूसा काजिम है, ये जितनी उनकी औलाद है आगे, ये 12 इमाम है, ये इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने तो सबील नहीं लगाई। हमें ज्यादा मोहब्बत है उनसे। भाई अगर आप अहले बैत के मानने वाले हो, वाकई हुसैनी हो, वाकई हजरत हुसैन को मानने वाले हो, तो वो काम करो ना जो हजरत हुसैन की औलाद ने किया है। हम हुसैनी ही हैं और काम भी वो कर रहे हैं जो उनकी औलाद ने किया, तो फिर हम हुसैनी नहीं है। फिर हम हजरत हुसैन और हुसैनी कहने के लायक। भाई इतने साथी यहां बैठे, इतनी बात तो समझने की कोशिश करो यार। हर साल आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि ये चीजें दीन इस्लाम में नहीं है। ये सबीलें इस दिन लगाना और इस दिन खाने पकाना बांटना, इस दिन को मखसूस करके कब्रिस्तान जाना दीन इस्लाम में नहीं है। फिर आप कहेंगे फिर की करिए, तो काम भी तो दसो असी की करिए। फिर भाई हमें भी नबी ने सिखाया है कि इस दिन क्या करना है, हमें बताया है। क्या बताया है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है कि इस दिन तुमने क्या रखना है। वैसे कितनी अजीब बात नहीं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बंदा अकल से भी सोचे, 3 दिन उन पर क्या रहा? पानी बंद रहा, 10 को शहीद किया गया, और हम क्या लगा रहे हैं? उन पर पानी बंद रहा, वो प्यासे रहे, और हम सबील पी रहे हैं। और तो सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हो अल्लाह के बंदो। ये तो हुसैनियत वाला काम तो नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रोजा सिखाया है, 9, 10 या 10, 11।
2 रोजे रख लो, 1 साल के गुज़िश्ता गुनाह माफ। तो हम सब क्या रखेंगे? बोलते नहीं भाई, मैंने पता है गर्मी ज्यादा है, मैंने पता है, लेकिन नियत तो करो, अल्लाह तौफीक देगा यार, अल्लाह ताला मौसम अच्छा बना देगा, लेकिन नियत तो करो कि हम सब रोजा रखेंगे। क्यों? कि हमारे नबी ने हमें सिखाया, और नबी ने रखा है, और सहाबा ने रखा है, ताबीन ने रखा है, मुज्तहिदीन ने रखा है, अहले बैत ने रखा है, नबी के घराने ने रखा है। नहीं समझ आई बात? जो काम नबी ने किया वो करेंगे, नबी ने सबील नहीं सिखाई। कुरान मेरे सामने पड़ा हुआ, जुमे का दिन है, मैं आपसे गलत बयानी करूंगा यार, नबी ने सबील का हुक्म दिया हो और अहले बैत ने सबील लगाई हो, गम मनाया हो, रोए हो, पीटे हो, मारा हो, तो मैं आपको ना बताऊं? जब ये बात बता रहा हूं कि रोजा रखा है नबी ने, नबी ने रखने का कहा है, सहाबा ने रखा है, ये बात बता रहा हूं, तो ये बात क्यों ना बताऊं? कि आधी बात बताऊं, आधी ना बताऊं? जो बात नहीं है वो सिरे से है ही नहीं, मैं क्यों उस पर जोर दूं? और जो बात है वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखा है भाई? रोजा रखा है। तो हम भी क्या रखेंगे? सिर्फ हम रखेंगे या हमारे घर वाले भी रखेंगे? ये बात बतानी है आपने भाई, अमानत, खयानत ना करना। अमानत बता रहा हूं, घर में जाकर बताना है कि इस दिन हमने, हाँ, एक हदीस, वो भी ज़ईफ, न कुरान की आयत न किसी सही हदीस में, एक हदीस कमजोर सी है, एक हदीस कमजोर सी है, ज़ईफ सी है कहते हो, तो बता देता हूं आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन यानी 10 मुहर्रम को जो बंदा अपने घर वालों पर, और बात गौर से सुनना इसको, जितनी बात है उतनी माननी है, जितनी बात है उतनी माननी, इजाफा नहीं करना। जो बंदा 10 मुहर्रम को अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाता है, बस, बाहर की गल नहीं है, चौक की गल नहीं कर रहे, गली की गल नहीं कर रहे, अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उसके खाने में बरकत अता कर देता है। इतनी सी बात, वो भी कमजोर हदीस में है, लाजिम नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो उस दिन रोजा रखकर अपने घर वालों को अच्छी सी क्या करवा दे, करवा दे। अल्लाह ताला अमल करने के